Hello, Nishan. Good afternoon. Your name was Ananya, Drishti, Shiksha, Jugendra, Jugandhar, Ram. I'll have to ask a few more times. Okay. In the last class, we solved this question, right? And this one I've asked you to solve. Which one? This one. Have you tried? Can we verify the answers? Hmm? Jugandhar? ठीक है. Answers you have attempted, right? You have tried to solve. So let us cross check. This question was wait a second. Okay, tell me the answers. Calculate the cost driver rates. Cost driver rate is easy, and prepare the statement showing the overhead cost allocated to each product using activity based costing. So what is the overhead? Product wise overhead. Can anyone come up with the answer? Product wise overhead. Anyone? Hmm? No? Koila, try Koila. ঠিক আছে এর তোমাৰ টোটাল ওভাरहेড কিমান টোটাল পিওর টোটাল ওভাरहेড কিমান ওলালে करेक्ट Q करेक्ट 1360400 easy. It's a very easy question. Nothing much in this question. You have to just allocate the cost on the basis of the cost driver, nothing else, right? Let me just write down the answers. You can cross verify when you will be solving this question, because it may not be possible to solve each and every question, right? Tell me the answers. Total overhead 802 000 for Q 783600. Okay, this is the total overhead cost allocation. ठीक है, लिखना है तो लिख लो. हाँ, करा हुआ है. चलो बढ़िया. Next question. BONT Limited is following activity based costing. The budgeted overhead and cost driver volumes of the company are as follows. ये है budgeted overheads and cost driver भी दिया हुआ है. तो आप यहाँ पे सिंपली क्या निकाल लोगे? रेट पर यूनिट निकाल लोगे, है ना? उसके बाद the company has produced a batch of 5200 of AXL6. Its material cost was 2,60,000. Labor cost was 4,90,000. The usage of activities is given. ठीक है, इजीली निकल जाएगा ये, इजीली निकल जाएगा. कुछ तो डिफिकल्ट नहीं है इसमें. कैसे निकालना है? एक्टिविटी रेट निकाल लो आप. कितना एक्टिविटी रेट? 1160 डिवाइडेड बाय 2200. इसका 527.27. नेक्स्ट 5 lakhs divided by 1360, it is 367.65. next 1940
डिवाइडेड बाय 16,800, 115.48। देखो और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एग्ज़ाम में जब ऐसे फ्रैक्शंस में नंबर आएगा ना, आप लोगों को लग सकता है हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, लग सकता है ना। तो फ्रैक्शंस में अजीब व गरीब नंबर सब आ रहा है, लगता है कि हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में वो लोग ऐसे ही फ्रेम करेगा क्वेश्चंस। हाँ अभी हाँ वही एग्जाम देते देते तो आइडिया हो जाएगा। इसमें क्या है, 798.08, 352 डिवाइड बाई 1800, 195.56। तुमने क्या सारा सारा सॉल्व कर लिया? 30, ठीक है। तो ये सारा एक सेल का कॉस्ट कितना आएगा? एक सेल में कितना आएगा? मटेरियल ऑर्डर्स 52 है, ठीक है। तो मटेरियल ऑर्डर्स कौन सा में आएगा? मटेरियल प्रोक्यूरमेंट में आएगा। मटेरियल मूवमेंट आएगा मटेरियल। सो बेसिकली यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। मटेरियल प्रोक्यूरमेंट किस में आएगा? मटेरियल ऑर्डर्स को 52 से मल्टीप्लाई करो। मटेरियल मूवमेंट्स मटेरियल हैंडलिंग में आएगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 36। फिर सेटअप में आएगा कितना? 50। उसके बाद मेंटेनेंस आवर्स, मेंटेनेंस में आएगा 1380। सिर्फ यूनिट एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे डेज दिया हुआ हो, यहाँ पे आवर्स में दिया हो, यूनिट शुड बी द सेम। ओके। क्वालिटी कंट्रोल, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस मल्टीप्लाइड बाय 56। मशीन आवर्स 3600, ठीक है। इसका टोटल यहाँ पे निकालो, प्लस क्या ऐड करना है और इसमें, और क्या ऐड करना है आपको? ऐड करना है मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 260 और 490 एडिशनली आपको ऐड करना है, ठीक है। द आंसर विल बी कितना आएगा आंसर? If you get different answer, then please we can discuss further. Okay, you try to solve this question also. If you get different answer, then we can discuss it in the next class. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, उसलिए मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। Okay, so this is the answer. If you get a different answer, then we can discuss it in the next class. Noted? चलो नेक्स्ट। इसमें डाउट है? Following are the data of three product lines of departmental store for the year 2022-23. Revenues, cost of goods sold, cost of bottles returned, number of purchase orders placed, number of deliveries received, number of shelf stocking time, items sold. Okay, additional informations related to the store are given below. bottles returned, रिटर्निंग ऑफ एम्प्टी बॉटल्स, ठीक है। टोटल कॉस्ट बॉटल रिटर्न में कितना आया? 30,000। इसको कैसे एलोकेट करोगे, कौन सा रेशियो में करोगे? $30,000 को सिंपली हम लोग किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक में डाल देंगे।
ऑर्डरिंग कॉस्ट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ परच हाँ, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स प्लेस्ड. ऑर्डरिंग कॉस्ट यू आर परचेजिंग ना, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स प्लेस्ड. डिलीवरी, नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड. शेल्फ स्टॉकिंग, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम. ठीक है. और कस्टमर सपोर्ट, आइटम सोल्ड. क्या डाउट है इसमें? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट. क्या डाउट है बताओ. क्यों? क्या दिक्कत है बताओ. टोटल मैच नहीं कर रहे क्या? मैच तो कर रहा है. 8640, 432 डिवाइड बाई 8640 मल्टीप्लाइड बाई 2700, 5400 एंड 540. क्या है इसमें? ये पहले पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे ना. पर यूनिट कॉस्ट निकाल के आपको मल्टीप्लाई करना है पर एक्टिविटी और पर कॉस्ट ड्राइवर बोल लो. पर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो कितना आपने यूटिलाइज किया है. ठीक है. ये भी इजी क्वेश्चन है. आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. आंसर मैं बता देता हूँ. कुछ डिफरेंट आंसर आए तो वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. बोलो. ठीक है. दिस इज द आंसर. So this is all about activity based costing. So try to solve all the illustrations given in the book. कुछ दूसरा मटेरियल फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है. यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन द मटेरियल इटसेल्फ. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग. क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग? कैन एनीवन टेल मी क्या होता है? व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? एनीवन? मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? Any answers? Tell me. The cost of producing one extra unit. Simply. Cost of producing one extra unit. मतलब कि
देखो मैं मान लेता हूँ, पहले तो कुछ हम लोग को एजम्पशंस समझना पड़ेगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में वी ट्रीट कॉस्ट इनटू टू कैटेगरीज, इधर फिक्स्ड या वेरिएबल। इवन सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी है, हम लोग उसको भी सेग्रीगेट करेंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल में, ठीक है। द कॉस्ट में भी इधर फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल पता है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका सेलिंग प्राइस है 100, ठीक है, और उसका वेरिएबल कॉस्ट है, से 80 रुपीज़, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है 80 रुपीज़। एंड मेरा फैक्ट्री का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट मान के चल रहा हूं कि ₹15,000 इज द फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अभी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से, ये तीन इंफॉर्मेशन है मेरे पास, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से मेरा कितना सेविंग्स हो रहा है, कितना सेविंग्स हो रहा है एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से, 20। प्रॉफिट नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मैंने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना बना 20। 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, कंट्रीब्यूशन कितना बना 2000। 500 प्रोड्यूस किया, कितना बना 10,000, ठीक है। 750 प्रोड्यूस किया, कितना बनेगा 15,000। 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया 20,000। कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ आइडिया मिल रहा है, क्या क्या है 750? 750 में क्या हो रहा है, हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो रहा है। 750 is the point where there is no profit, there is no loss. So this point is what? Break even point. Break even point क्या होता है? The point where there is no profit, no loss. एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर समझने का ट्राई करें, ये इस साइड में हम लोग का कॉस्ट हो गया, इस साइड में सेल्स, ठीक है। अभी देखो ये मान लेता हूँ मैं 15,000 वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट हो गया। अभी जब आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दोगे, आपका यहाँ से कॉस्ट बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप सेल प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, फिक्स कॉस्ट का साथ ही आपका वेरिएबल कॉस्ट ऐड होगा, है कि नहीं। फिक्स कॉस्ट तो एक प्रोड्यूस करो नहीं करो, फिक्स कॉस्ट आपका इनकर होने वाला है। जो टोटल कॉस्ट होगा, ये टोटल कॉस्ट वाला जो एक्सिस है, इसमें यहाँ से बढ़ने लगेगा, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इवन इफ यू प्रोड्यूस 0 यूनिट्स, यू हैव टू इनकर द फिक्स कॉस्ट। आप कंपनी बंद करके भी रखो, फिक्स कॉस्ट आपको पेमेंट करना है, रेंट आपको पेमेंट करना है। दैट्स वाई 0 यूनिट्स में भी आपको फिक्स कॉस्ट तो मिनिमम आपको पे करना है। उसके अलावा आप जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आपको वेरिएबल कॉस्ट भी पेमेंट करना है। सो टोटल कॉस्ट मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। अभी मैं सेल्स जब स्टार्ट करूंगा, सेल्स तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, सेल्स ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है, ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मेरा जो सेल्स का ग्राफ है और टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर देर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। आप प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज में कैसे शो करते हो, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे दिखाते हो? नहीं, कंट्रीब्यूशन छोड़ो, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, है ना। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग प्रॉफिट का बात नहीं करते। देयर इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट, विच इज कंट्रीब्यूशन।
तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो, इसको ऐसे लिखता हूँ। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, या फिर और एक नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, या तो हम लोग सी कंट्रीब्यूशन सेल्स वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं, या पीवी रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ये वही वाला फॉर्मूला है जो प्रॉफिट बाय सेल्स हम लोग करते हैं। प्रॉफिट का जगह में सिंपली वी आर राइटिंग कंट्रीब्यूशन। अभी पर यूनिट निकालना है, मान लो पर यूनिट निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सिमिलरली इसको अगर यूनिट में निकालना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, ये पर यूनिट में निकल जाएगा, ये वैल्यू में निकलेगा, ये पर यूनिट में निकलेगा। ये सिस्टमेटिकली मैं बना के रखा हूँ, डोंट वरी। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से बना हुआ है, यू डोंट हैव टू बॉदर। ठीक है, यहाँ पे सारा मैं बना के रखा हूँ, डोंट हैव टू थिंक मच। ये कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टूड। ये एक नंबर हो गया। उस और एक चीज समझते हैं। फर्दर फॉर्मूला समझने के पहले हम लोग एक बार मार्जिनल कॉस्टिंग का तरीका समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, कॉस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो हम लोग का फॉर्मेट कुछ ऐसा बनेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये बनेगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सेल से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे, अगर सेल से कॉस्ट माइनस कर दो, टोटल कॉस्ट माइनस कर देने से क्या निकलता है? प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, तो क्या निकलेगा? कंट्रीब्यूशन। उससे हम लोग अगर फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दे, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दे तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट, है ना। सिर्फ ये पार्ट को थोड़ा सा अलग से हम लोग तरीका से रिप्रेजेंट किया है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग दिखाया है। अदरवाइज सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, वही चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखो, ये चीज़ एकदम दिमाग में बिठा लो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज। हम लोग जो भी मार्जिनल कॉस्टिंग का हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें ट्राई करना है कि हम ये फॉर्मेट को ध्यान में रखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में मैंने क्या बताया, आप कंट्रीब्यूशन ऐसा कितने टाइम कलेक्ट करोगे ताकि आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो कवर हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कवर द फिक्स कॉस्ट, है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू कवर द फिक्स कॉस्ट। वापस ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे 20-20-20 करके टोटल करके देख रहा हूँ कि 15,000 कितना में बनने वाला है। तो मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करना चाहो, कैसे कैलकुलेट करोगे? 15,000 तक पहुँचने के लिए मुझे 20-20 करके कितना बार एक्यूमुलेट करना पड़ेगा? 15,000 डिवाइड बाय 20 मतलब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज व्हाट? इन यूनिट्स। इन यूनिट्स देखा जाए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। इसका और एक तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज क्या था इस केस में, 20% ही था, क्योंकि ये 100 लेके मैंने पकड़ा। अगर 100 नहीं होता, कुछ ऑड फिगर होता, तो कुछ परसेंटेज हमें निकालना पड़ता। कैसे निकालते? 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। और कुछ दूसरा फिगर होता, मान लो यहाँ पे 20 का 100 का जगह 200 है और यहाँ पे 80 का जगह 160, हम लोग कैसे निकालते? हाँ, 40 160 नहीं, 40 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। ठीक है, ये क्या है बेसिकली? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, ठीक है। एक चीज आपको समझ आता है, एक स्टेटमेंट में अगर लिखूं, एक स्टेटमेंट अगर लिखूं मैं यहाँ पे कि आपका अगर सिंपल मैथमेटिक्स, डोंट गो बाय कॉस्टिंग एंड एनीथिंग, आपका प्रॉफिट का जो परसेंटेज है 25% है, ठीक है। आपको प्रॉफिट अर्न करना है, आपका जो डिजायर्ड प्रॉफिट है मान लो 10,000 रुपया है, तो आपका सेल्स कितना होगा? सिंपल है, सिर्फ इतना सा बताओ मुझे, बाकी कॉस्ट वॉस्ट छोड़ दो अभी। कैसे किया? जिसको समझ नहीं आया और सिंपल तरीका से समझाता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है? नहीं किया है? चलो करते हैं हम लोग। प्रॉफिट और सेल्स, प्रॉफिट अगर 25 है, सेल्स कितना है? क्योंकि 25% है ना, परसेंटेज इज व्हाट ऑन 100, है ना, नहीं क्या? तो प्रॉफिट अगर 10,000 है, सेल्स कितना होगा? ये आपने किया है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये किया है ना। सो इसको अगर x मान लो, x इज इक्वल टू क्या होगा? जो भी आप सब कैलकुलेट करो, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 25। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, 100/25 का मतलब क्या है? आप इसको डिवाइड कर रहे हो, 10,000 को डिवाइड कर रहे हो 25% से। सिंपली अगर बोले तो 10,000 को 25% से डिवाइड करके आप उसको ग्रोस अप कर रहे हो। ये 10,000 किसका ऊपर कैलकुलेट हुआ है? सेल्स का ऊपर कैलकुलेट हुआ है। कितना परसेंट करके कैलकुलेट हुआ है? 25% करके। ग्रोस अप कैसे करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे सिंपली। सिमिलरली ये अगर समझ आया तो ये भी आप समझ जाओगे कि हम लोग बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट कवर कर रहे हैं, क्या रेशियो से कवर कर रहे हैं? प्रॉफिट रेशियो से, मतलब कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट का तो बात नहीं कर रहे, सो कंट्रीब्यूशन रेशियो मतलब, या पीवी रेशियो। मोस्टली हम लोग पीवी रेशियो ही बोलेंगे, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से, प्रॉफिट रेशियो से हम लोग डिवाइड कर देने से ये वैल्यू में निकल जाएगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट को कवर करना है हमें। इधर आप पर यूनिट रेट, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से करो तो आपको यूनिट में निकल जाएगा, या आप पीवी रेशियो से करो तो आपका वैल्यू में निकल जाएगा, ठीक है। बट पर्पज इज, ब्रेक इवन में हम लोग का क्या पर्पज है? टू कवर द फिक्स कॉस्ट, ठीक है। समझ आ गया यहां तक? नेक्स्ट क्या है इसके बाद? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसका पहले कुछ है क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना ही तो है। चलो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? कितना आप सेफ हो। इसी में एग्जांपल में आप देखोगे, जब आप 20,000 प्रोड्यूस कर रहे हो, 20,000 अगर आप, सॉरी 20,000 आपका सेल्स है, 1,000 यूनिट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग, हाउ मच मोर यू आर प्रोड्यूसिंग? कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो? कहां से? क्वेश्चन इज कहां से कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो? सेफ्टी मतलब सेफ्टी पॉइंट कहां से आप काउंट करोगे? आप कहां तक सेफ हो पहले बताओ। 15,000 तक सेफ हो आप, 750 तक मतलब ब्रेक इवन तक आप सेफ हो। उसके ज्यादा जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो वो क्या है?
हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपका सेफ्टी मार्जिन है ना। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? हम्म, बोलो, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मतलब जितना आप एक्चुअल में अभी सेल कर रहे हो, आपका ब्रेक इवन सेल्स जो है उसका डिफरेंस ही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। और एक तरीका है, क्या तरीका है? प्रॉफिट को, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, जैसे यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दिया, सेम कंसेप्ट, वही वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या है? आपका प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट होना, है ना। प्रॉफिट एग्जैक्टली 5000 नहीं है, प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है आपका? हाँ, तो 5000 है तो, क्योंकि वही है, ठीक है। सो 5000 इज द प्रॉफिट। तो उसको ग्रोस अप कर दोगे, उसको आप पीवी रेशियो से, मतलब कि 5000 अर्न करने में 5000 प्रॉफिट हो गया ना। 5000 आपका प्रॉफिट हो गया। इसको 2020 करके आप कितना बार करने से आपका 5000 होगा, वही क्वेश्चन हो गया आपका, वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। फ्रॉम दिस टू दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है कि नहीं। ये अर्न करने के लिए आपको कितना कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो इधर you find out by subtracting break even sales from the actual sales, or you simply divide profit by PV ratio। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम लोग उसी हिसाब से करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही एप्लीकेबल होगा, यही एप्लीकेबल होगा, ऐसा डेफिनेट नहीं है। बोलो। यूनिट्स के लिए वो यूनिट से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, कोई नहीं। इसमें भी सेम चीज कर सकते हो, इसमें भी इंस्टेड ऑफ पीवी रेशियो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले सकते हो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेम ही चीज निकले, मतलब ये यूनिट में निकलेगा, ये जो निकलेगा ना यूनिट्स में निकलेगा, ये वैल्यू में निकलेगा, ठीक है। ये जो निकलेगा ये वैल्यू में निकलेगा और ये यूनिट्स में निकलेगा। क्लियर है कंसेप्ट? अगर कंसेप्ट क्लियर है देन ओनली वी विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत है। अभी बहुत सारे जगह आप देखोगे मल्टीपल फॉर्मूलाज लिखा हुआ है, जैसे पीवी रेशियो का सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, मतलब इसको इधर लेके चला गया, इसको इधर लेके जाके अलग से फॉर्मूला बना दिया। जरूरत नहीं है, आप एक ही फॉर्मूला याद रखो ताकि आप वैल्यू यहाँ पे डाल दो। सपोज फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में आपका पीवी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, सेल्स दिया हुआ है, आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, निकाल लोगे इसी फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज करके। या फिर आपका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया, आपको सेल्स निकालना है, निकाल लोगे। अलग अलग फॉर्मूला लर्न करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि इसमें अगर समझ नहीं आया तो देन दिक्कत है। Now formula is one thing, another thing is why do we need to learn this formula, why do we need to understand contribution, why don't we go for profit, है ना। प्रॉफिट के बारे में क्यों नहीं है, हम लोग कंट्रीब्यूशन के बारे में क्यों बात करें। क्या वन एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना है, नहीं। पर्पज ये है कि आप चाहे प्रोड्यूस करो ना करो, आपको फिक्स कॉस्ट एनीवेज पे करना है। सो रेलेवेंट कॉस्ट आपका क्या है? हाँ, रेलेवेंट कॉस्ट है आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट। इस केस में रेलेवेंट कॉस्ट आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट है ना। सो दैट्स वाई हम लोग कंट्रीब्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि प्रॉफिट में, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एनीवेज आपका रहने ही वाला है।
आप चाहे कंटिन्यू करो नहीं तो शट डाउन करो, थोड़ा बहुत वेरी करेगा बट अदरवाइज मोस्टली फिक्स कॉस्ट आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तब बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, जो फॉर्मूलाज हैं थियरीज में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट नहीं, सेमी वेरिएबल हो सकता, फिक्स कॉस्ट वेरी कर सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन में हो, देन यू आर पेइंग रेंट, बट इफ यू आर डिसाइडिंग वेदर टू शट डाउन द प्रोडक्शन और नॉट, शट डाउन का डिसीजन में यू हैव टू इनकर सम एडिशनल कॉस्ट एज वेल एज शट डाउन कॉस्ट, आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा, उसके लिए आप एडिशनल एक कॉस्ट इनकर करोगे। सो दैट मे वेरी, वो हम लोग क्वेश्चंस में बेटर समझ, वेरी नहीं मतलब ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट वेरी नहीं करेगा बट एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ सकता है। ठीक है, फॉर्मूलाज कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, पीवी रेशियो, चेंज इन कंट्रीब्यूशन। हाँ, ये एक नहीं बताया मैंने, जब 2 पीरियड का डेटा गिवन हो, व्हेन द पीरियड डेटा ऑफ 2 पीरियड्स आर गिवन, तो पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, 2 पीरियड का डेटा अगर गिवन है, मान लो 2024 का डेटा गिवन है और 2025 का डेटा गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेल्स दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 2 lakhs दिया हुआ है, यहाँ पे 2,50,000 दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 और यहाँ पे 60,000। सो पीवी रेशियो क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000। ठीक है, so this can be another formula। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये पीडीएफ में है तो मैं तो दे ही दूंगा। मैं कर दूंगा, आज ही कर दूंगा। ठीक है, पीवी रेशियो हो गया, बीपी हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। हाँ, डिजायर्ड प्रॉफिट आपको अगर निकालना है, जैसे कि हम लोग बीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट को डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है मतलब आपको क्वेश्चन में बोला गया कि आप इतना अमाउंट का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना आपको सेल्स करना पड़ेगा। यू वांट टू अर्न से फॉर एग्जांपल 10,000 प्रॉफिट, हाउ मच यू हैव टू सेल, तो उसमें आपको वही वाला फॉर्मूला यूज करना है बीईपी वाला, बट उसमें सिर्फ आपको डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देना है, बाकी सब सेम है। ठीक है, आपको डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करके डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, मतलब फिक्स कॉस्ट के साथ साथ आपको और एक चीज कवर करना पड़ेगा। क्या कवर करना है, जो भी आपका प्रॉफिट चाहिए, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उस प्रॉफिट को भी ऐड कर दो उसके साथ साथ। ठीक है, ये थियरीज है, थियरीज डिस्कस करना है थोड़ा थोड़ा। चलो, डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में ये डिफरेंस है कि मार्जिनल कॉस्ट में हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट में वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉस्ट का बारे में बात करते हैं, टोटल कॉस्ट का बारे में बात करते हैं उसमें। ठीक है, और कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो कि सेम ही है, टोटल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा अगर फिक्स कॉस्ट सेम है, तो वही लिखा गया, इफ ओनली वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस डिफरेंशियल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स मार्जिनल कॉस्ट। मतलब अगर फिक्स कॉस्ट आपका वेरी ही नहीं हो रहा है तो दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, अंतर ही नहीं है, टोटल कॉस्ट तो आपका एज इट इज रहेगा, है कि नहीं, ओनली वेरिएबल कॉस्ट ही वेरी करते रहेगा। सो इन अ वे यू कैन से इफ द फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट।
क्योंकि कभी कभी होता है कि आप कैपेसिटी अगर बढ़ा रहे हो, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, देन यू हैव टू इनकर सम एडिशनल फिक्स कॉस्ट, है ना. फिक्स कॉस्ट मे नॉट रिमेन सेम. आपका कैपेसिटी 100% है, यू हैव टू प्रोड्यूस 120% कैपेसिटी, देन यू हैव टू इनकर सम एडिशनल फिक्स कॉस्ट. तो उस केस में डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा. मेरा टोटल कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, थोड़ा पढ़ लेना, ही एग्जाम में आ सकता है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन. पर मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग प्रोडक्ट कॉस्टिंग और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है. फिक्स्ड कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ईच प्रोडक्ट बेयर्स अ रीजनेबल शेयर ऑफ फिक्स कॉस्ट. जैसे हम लोग अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में करके आए हैं, या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में भी एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के उसको चार्ज ऑफ कर देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, है ना. बट मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, फिक्स कॉस्ट आर रिगार्डेड एज पीरियड कॉस्ट. द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज जज्ड बाय देयर पीवी रेशियो, और यू कैन से कंट्रीब्यूशन. प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूशन से डिसाइड कर दे, ना कि प्रॉफिट से. Cost data are presented in conventional pattern. Net profit of each product is determined after subtracting the fixed cost along with their variable cost. वही है, दोनों cost minus करते हैं. Cost data are presented to highlight the total contribution of each product. The difference in magnitude of opening and closing stocks affect the unit cost of production due to impact of related fixed cost. The difference in magnitude of opening and closing stock does not affect the unit cost of the production. वो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हम लोग प्लस माइनस करते थे ना, क्यों किया जाता था, ताकि फिक्स कॉस्ट को कैरी फॉरवर्ड किया जा सके. जो क्लोजिंग स्टॉक निकला है उसमें तो फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूडेड रहता है, तो वो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा ना. द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम लोग एनीवेज वेरिएबल कॉस्ट में चार्ज कर रहे हैं, ठीक है. फिक्स कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है. ठीक है, सब थोड़ा थियरी देख लेना. बुक में नहीं है सब क्वेश्चन, प्रिंट आउट लाना भी भूल गया, बोल देता हूँ. वो नहीं है क्या शशिधर, आज एक मेल में पीपीटी भेजा है, उसका इलस्ट्रेशन सारा प्रिंट कर लेना, 4 कॉपी. From the following particulars, calculate contribution, PV ratio, break-even points in units and in rupees. क्या है वो, अच्छा okay. What will be the selling price per unit if the break-even point is brought down to 25,000 units? बताओ. आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ. कंट्रीब्यूशन कितना है, आंसर लिख रहा हूँ खाली. If you have understood so far, tell me what is the contribution. 5 rupees 5 per unit. Then PV ratio. What is the PV ratio? So let us try to solve only, because everyone may not be at the same pace, so let us try to solve. Okay. So this is illustration number 1 of
ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। एक्चुअली चैप्टर का नाम मार्जिनल कॉस्टिंग है या दूसरा कुछ है? दूसरा कुछ है, नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग तो मतलब सब चैप्टर का नाम है। डिसीजन मेकिंग टूल्स, उसमें डिसीजन मेकिंग टूल्स में सीवीपी एनालिसिस भी आता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्टिंग तो एक पार्ट है, बट व्हाट इज आवर मेन पर्पस? हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन डिसाइडिंग what, whether to buy or make the product, whether to continue producing or shut down। ये वाला पार्ट एक बार डिस्कस करना था, ये कर लेता हूँ, रुको। नहीं आगे है, एडवांस्ड है थोड़ा। ग्रुप 1 में कहाँ तक किया था? नहीं, स्टैंडर्ड तो खैर अलग चैप्टर हो गया। इसमें मार्जिनल में कितना किया था? इतना ही किया था जो आप फॉर्मूलाज बताया, यही सिंपल कैलकुलेशन था। अभी एडवांस में यही सब चीज़ यूज़ होगा। एडवांस में हमें कंपनी को सजेस्ट करना है कि आपको मेक करना है या बाय करना है, फिर फॉरेन मार्केट एक्सप्लोर करना है कि नहीं, एक कोई ऑफर आया आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, कैसे करेंगे? यही है कि इंफॉर्मेशन यूज़ करके, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, कंट्रीब्यूशन कितना है प्रोडक्ट का, उस बेसिस पे हम लोग रैंकिंग करेंगे प्रोडक्ट को। इस ऑप्शन में मेरा इतना प्रॉफिट आ रहा है, इसमें इतना लॉस आ रहा है, तो ये प्रेफरेबल है। मतलब ऑप्शंस आपको दिया जाएगा, 2 ऑप्शन, आपको उसमें से डिसाइड करना है। पैटर्न सेम ही रहेगा कि 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में से कौन सा बेटर है, वही आपको बोला जाएगा। तो उसका तरीका कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग हर एक टॉपिक आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। हाँ, सप्लाई और हाँ हाँ, आप ऐसा भी क्वेश्चन है कि आप खुद कैपेसिटी इंक्रीज करके आपका कितना कॉस्ट आएगा, या फिर आप डायरेक्टली सप्लायर से परचेस कर लो, उसमें कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, वो सब डिसीजन आपको लेना है। आप खुद प्रोड्यूस करेंगे या बाहर से सप्लाई लेके कैटर करोगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वही है बेसिकली, हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशन ही करना है, हम लोग को इंटरप्रिटेशन करके उसका कमेंट भी लिखना है, जस्टिफाई करना है मैनेजमेंट को। ये तो खैर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट लेटर ऑन जब हम लोग सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपसे जस्टिफिकेशन मांगेगा कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, क्यों बेटर है, देना पड़ेगा, उससे उसमें मार्क कवर होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमने बात किया है 2 चीज़ के बारे में बात किया है ब्रॉडली। एक हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, एक हो गया पीवी रेशियो। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, 2 प्रोडक्ट है ए और बी, ठीक है, बीपी और पीवी रेशियो, थोड़ा सोच के बताना। इसका पीवी रेशियो 25%, इसका पीवी रेशियो है 30%, ठीक है। इसका बीईपी है 40,000 यूनिट्स एंड इसका बीईपी है 50,000 यूनिट्स, ठीक है। आपको बोला गया है आप दोनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कौन सा करोगे? कुछ मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, कैलकुलेटर छोड़ दो, बताओ। कौन सा करोगे? बोलो। नहीं बोल सकते हो, क्यों? तो आप क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना चाहते हो, सिर्फ आप ब्रेक इवन तक पहुंचना चाहते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवाना चाहते हो? वहीं पे आंसर आता है
कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ब्रेक इवन करना या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना? नहीं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट लो सेलिंग प्रोडक्ट है, डिमांड अगर कम है, लो डिमांड का केस में, लो डिमांड का केस में आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी मेरा ब्रेक इवन तक मैं पहुंच जाऊं, है कि नहीं? लो डिमांड का केस में आप प्रोडक्ट विथ लो बीपी चूज करोगे, प्रोडक्ट विथ लो बीपी। क्यों? क्योंकि आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी मैं बीपी तक पहुंच जाऊं, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट तक पहुंच जाऊं, मैं फिक्स कॉस्ट कवर कर लूं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट का डिमांड उतना है नहीं मार्केट में। लेकिन वहीं पे आपका अगर हाई डिमांड है, हाई डिमांड है, आप तो आपको तो समझ आ जाएगा बीपी तो एनीवेज मैं पहुंच ही जाऊंगा, वो मेरा कंसर्न है ही नहीं। मेरा कंसर्न क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तब मैं क्या चूज करूंगा? बी। इस टाइप का एनालिटिकल माइंड चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है? ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इवन आया भी है पास्ट ईयर्स में, और भी फिगर्स देगा नो डाउट। कैलकुलेशन यहाँ तक पहुँचने के, बीपी तक पहुँचने के लिए और पीवी रेशियो तक पहुँचने के लिए आपको वैल्यूज दिया जाएगा। लेकिन आपको डिसाइड कैसे करना है? कमेंट में क्या लिखना पड़ेगा? इफ इन केस ऑफ लो डिमांड आई विल गो फॉर प्रोडक्ट ए बिकॉज प्रोडक्ट ए हैज लो बीपी, एंड इन केस ऑफ हाई डिमांड the objective of the company is to maximize profit, therefore the product with higher PV ratio is preferable. Understood? So this is the difference between marginal costing and the decision making techniques that we are currently working on. जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का डिफरेंस इतना ही है, आपको सजेशन देना है और एनालिस करना है। क्या प्राइस मैटर करेगा? प्राइस का बेसिस पे ही तो हम लोग इसमें अराइव किया है ना, बीपी और पीवी रेशियो तो प्राइस का बेसिस पे अराइव किया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैटर करेगा व्हेन वी ड्रिल डाउन इनटू द क्वेश्चन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैटर करेगा। जस्ट ब्रॉडली मैं बताया, बाकी क्वेश्चन में तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा। ओके, सो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का? हाँ, हम लोग वही चार्ट बनाएंगे, ये बनाने का हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे, ठीक है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विच गिव्स मी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। इसमें सेल्स कितना है? 15, वेरिएबल कॉस्ट इज 10, कंट्रीब्यूशन इज 5। अभी बताओ फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या पर यूनिट में निकलता है, टोटल में निकलता है? टोटल में निकलता है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग हमेशा टोटल में निकालते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पर यूनिट में निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल में ही निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन मेरा निकल गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया। पीवी रेशियो क्या होगा? पीवी रेशियो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना है? 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। ये चीज़ आप मतलब, हाँ, ओ सॉरी 15, माय बैड। ये चीज़ आप मतलब पर यूनिट में भी निकाल सकते हो, टोटल में भी निकाल सकते हो, वैल्यू सेम आएगा, ठीक है? कितना है? 33.33%। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसमें यूनिट्स और रुपीस दोनों में निकालने दिया है ना? सो फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,50,000। व्हाट इज द पीवी रेशियो? 33.33%। कितना बन गया? 4,50,000।
यूनिट्स में अब फिक्स कॉस्ट को या तो अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो, वैसे भी निकाल लोगे, या फिर ये जो वैल्यू निकला है इसको आप सेल से डिवाइड कर दो तो भी सेम ही वैल्यू निकलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 कितना 30,000। अब ऐसे भी निकाल सकते हो या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके भी निकाल सकते हो, कर लो। ठीक है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉट डाउन टू 25,000 यूनिट्स। बताओ, ये सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सेल्स चाहिए। चलो, हम लोग के पास क्या गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है। मैंने क्या बताया आपको, मल्टीपल फॉर्मूलाज लर्न नहीं करना, एक ही फॉर्मूला से हम लोग करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम लोग वही से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा कुछ सोचे बिना। बीपी का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस केस में क्योंकि ठीक है पीवी रेशियो ही करता हूँ। ठीक है, अभी बताओ इसमें कौन वेरिएबल फैक्टर कौन सा है तीनों में से? वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? पीवी रेशियो वेरिएबल फैक्टर है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज द वेरिएबल फैक्टर, नहीं क्या? नहीं आ रहा है समझ में? आप जब 25,000 यूनिट्स, यहाँ पे क्या बोला है, आपका सेलिंग प्राइस निकालना है जब आपका बीपी 25,000 है, मतलब बीपी एक तरीका से गिवन है, फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगा। वेरिएबल फैक्टर क्या बना, पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपका सेल्स चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही चेंज हो रहा है तो आपका कंट्रीब्यूशन ही चेंज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा तो पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा वाइप करके साइड में कर लेता हूँ। ये दिक्कत है, क्या हो गई? गायब भी हो गया, चलो अच्छा है। हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, बीपी। बीपी में क्या है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यहाँ पे हालांकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके लेने से अच्छा है क्योंकि यूनिट का बारे में बात किया है, बट ठीक है आप लोगों का कन्वीनियंस के हिसाब से मैं ये करके भी देख लेता हूँ। नहीं, इट इज़ बेटर टू टेक यूनिट्स क्योंकि बीपी भी आपका यूनिट्स में गिवन है, सो लेट अस टेक दिस इन। यार कहाँ गए वो? क्या हो गया इसको, कुछ तो हो गया। ओके, सो बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके करते हैं बिकॉज यूनिट्स में गिवन है। ठीक है, पीवी रेशियो से भी कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, उस निकलेगा तो सब में से निकलेगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। सो बीपी इज हाउ मच, 25,000 यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट 1,50,000, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना कितना होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 150 डिवाइड बाय 25 इज 6। ठीक है, अगेन मैं जाता हूँ वही वाला फॉर्मेट में, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट
इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, है ना। कंट्रीब्यूशन कितना है, मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10, सेल्स कितना हो गया 16, ठीक है। समझ आया, इसको वापस से ट्राई करता हूँ ओपन करने का। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाल सकते हो इसमें, मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को, हाँ नहीं 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 करना है वैसे। मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब देगा तब कंफ्यूज हो जाओगे। तुम क्या बोला, हाँ तो उसे क्या हेल्प होगा। तो टोटल कॉस्ट निकलेगा ना तुम्हारा, उससे तुम कंट्रीब्यूशन या सेल्स कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तुमको तो सेल्स ही निकालना है ना। इधर रेवेन्यू का दो ऑप्शन है, इधर कंट्रीब्यूशन या सेल्स, कॉस्ट का दो ऑप्शन है, फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो दोनों में से एक एक चीज़ हमें चाहिए होता है, ठीक है। अगर तुमको दोनों चीज़ दे दिया, सेल्स और कंट्रीब्यूशन, तो तुम उससे वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो। वैसे ही टेक्निक्स, एक इन्फॉर्मेशन है, दूसरा इन्फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज़ fixed expenses of rupees 90,000 which sells at rupees 3 lakhs and a profit of rupees 60,000 during its first half year. If in the next half year the company suffered a loss of 30,000, calculate the PV ratio. करो तो, ट्राई करो। इसमें मुझे लग रहा है फंसोगे। फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ, वो वाला फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। फिर पीवी रेशियो निकाल के दिखाओ, बाकी सब मैं दिखाता हूँ। दो पीरियड का अगर रहने से फॉर्मूला है ना, क्या है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, पीवी रेशियो का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ये बताया था ना, चेंज इन कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, ठीक है। वो प्रिंट करके दिया है ना, नहीं दिया, कहाँ गया, हुआ प्रिंट, कितना, चार सेट किया, 4 सेट बोला तो 4 सेट कर दो, ठीक है। निकला, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन,
बोलो बोलो, कुछ तो निकला होगा। नहीं, दिक्कत हो गई से। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपना? पीवी रेशियो, जब दो पीरियड का डेटा गिवन हो देन हम लोग कैसे निकालेंगे? चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया? कंपनी हैज फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ 90,000 विद सेल्स एट 3 लाख एंड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर। अच्छा, इसमें तो नहीं नहीं, ये प्रॉफिट है 60,000। नहीं, इसको उस तरीके से नहीं निकलेगा। इसको एक काम करते हैं, जो फर्स्ट हाफ ईयर का है ना उसका एक हम लोग टेबल बना लेते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ये प्रॉफिट। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? 3 लाख सेल्स है, और क्या है? 60,000 प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट कितना है? 90,000, कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है, थोड़ा गलत देख लिया क्वेश्चन। चलो बताओ, पीवी रेशियो अभी इस केस में कितना होगा? वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1.5 लाख डिवाइड बाय सेल्स इज 3 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100, 50%। नेक्स्ट क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 90,000, पीवी रेशियो इज 50%, so break even point is 1,80,000। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितना दिया हुआ है? 3 lakhs, बीईपी सेल्स इज 1,80,000, so it is 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हाँ वैल्यू में
यूनिट में अगर कोई भी चीज़ यूनिट में निकालना है तो पर यूनिट रेट यहाँ पे तो है नहीं पर यूनिट, अगर पर यूनिट रेट दिया हुआ क्वेश्चन उससे सर डिवाइड वो कर दो यूनिट थर्टी में थाउजेंड निकल। वाला लॉस का क्या होगा फिर? हाँ हाँ, हेलो। वो लॉस जो हुआ है सेकंड में जो लॉस हुआ है 30,000 3 लाख, हाँ हाँ थर्टी उसको थाउजेंड भी के। करेंगे। अभी ये अच्छा। फर्स्ट ईयर का ही हम लोग कर रहे हैं। जो पार्ट ए में बोला गया है ना, फर्स्ट ईयर का बारे में बोला गया है, ये ए वाला पार्ट में सिर्फ फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट हाफ का निकालना, फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। ओके ओके ओके। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर assuming that the selling price and fixed expenses remain unchanged। expected sales का मैंने क्या बताया था, desired sales वाला फॉर्मूला क्या था, उसमें क्या क्या कवर करना होता है, फिक्स कॉस्ट, उसके साथ साथ प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है ना। डिजायर्ड सेल्स का क्या फॉर्मूला था, फिक्स कॉस्ट, जैसे बीईपी सेल्स का क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। डिजायर्ड सेल्स का क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट के साथ साथ डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। थैंक यू। ओके, तो इस केस में रिक्वायर्ड सेल्स कितना होगा या डिजायर्ड सेल्स, वो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला ये फिक्स कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड, है ना। तो डिजायर्ड सेल्स में हमें क्या क्या कवर करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लेकिन इस केस में प्रॉफिट नहीं है, पर इसमें इस केस में क्या है, लॉस, 30,000 लॉस इनकर करेगा बोला है ना। सो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कितना था फिक्स कॉस्ट, 90,000 माइनस लॉस कितना बोला गया, 30,000 ना, 30,000 एंड पीवी रेशियो इज व्हाट, 50%। सो कितना आ रहा है वैल्यू, 1,25,000। 20, देखो ये टेबल बनाने से मेरा कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, सारा इन्फॉर्मेशन यही से मिल रहा है, समझने में भी इजी होता है। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर, पूरा साल का ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। तो पूरा साल का ब्रेक इवन निकालने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द होल ईयर, फॉर्मूला फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मेरा चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कुछ। पीवी रेशियो थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा, सेलिंग प्राइस क्योंकि सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है। तो पूरा साल भर का फिक्स कॉस्ट कितना है, फर्स्ट हाफ का 90 था, सेकंड हाफ का 90 है, पीवी रेशियो कितना है 50%, सो 180 डिवाइड बाय 50%, 3,60,000, ठीक है। और एक की क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी थ्रू आउट द ईयर ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितना है 120 प्लस ऊपर में कितना था
3 था क्या? 3 लाख था ऊपर में, 3 लाख प्लस 120 इज द एक्चुअल सेल्स। माइनस बीईपी सेल्स कितना अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला, 3,60,000। तो कितना आ रहा है? 60,000। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड? यू वांट टू टेक फोटो? ये कर लिया, फोटो लेना है तो ले लो। आंसर लिखना है तो लिख लो, बाद में खुद सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, a company has an annual fixed cost of 14 lakhs. In 2024 the sales amounted to rupees 60 lakhs as compared with the 44 5 lakhs in 2023। हाँ, ये वाला निकालो। ये वाला में क्या फॉर्मूला यूज होगा, अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का? हाँ, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे, फिर उसके बेसिस पे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 3 ना। So PV ratio is equal to change in profit divided by change in sales। कितना चेंज इन प्रॉफिट? 4,20,000 पक्का? हाँ, इसमें चेंज डायरेक्ट दिया हुआ है, 2 साल का फिगर रहता तो माइनस करते क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, सो कुछ इशू नहीं है। ठीक है, 4,20,000 और सेल्स, चेंज इन सेल्स कितना है? 15 lakhs। कैसे 60? इतना कम हो गया क्या सेल्स? अच्छा, ओके, 60 माइनस 45 16। तो चेंज इन सेल्स इज 60 lakhs माइनस 40 lakhs, 45 lakhs ना। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना निकला पीवी रेशियो? 28%। अभी इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग वही चीज बना लेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्यों निकाल रहे हैं? तो एक टेबल बना लेते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी साल का ले लो, कोई भी साल का ले लो, चाहे आप फर्स्ट ईयर का ले लो, सेकंड ईयर का ले लो। ठीक है, फर्स्ट ईयर का लेके मैं करता हूँ, ये सेकंड ईयर का 60 lakhs कौन सा सेकंड ईयर का था ना, 60 lakhs। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन कितना होगा?
अगर वो 28% प्रॉफिट होता, प्रॉफिट परसेंटेज होता और सेल्स 60 लैक्स होता, प्रॉफिट कितना होता? थोड़ा इजी लग रहा है अभी? समझने में थोड़ा इजी लग रहा है? 16,80,000। हाँ, अगर प्रॉफिट होता तो सेम चीज़ ही है ना, प्रॉफिट ही सोच के देखो। ये कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो मतलब ये कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो है ना। पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो। अगर सेल्स दिया हुआ है तुम कंट्रीब्यूशन ही निकाल सकते हो। तो वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में है ना, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, सॉरी फिक्स कॉस्ट कितना है? 14 लैक्स। तो 1,80,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 4 लैक्स नहीं, 44,20,000। हाँ, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालने बोला एग्जैक्टली हमें? फर्स्ट पार्ट में एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स डज द कंपनी ब्रेक इवन, कौन सा पॉइंट में ब्रेक इवन? ये जो हम लोग बनाए एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनाए, इसको फर्दर जब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस उसमें हेल्पफुल होगा। ठीक है, अभी हमें क्या निकालने बोला है? ए में ब्रेक इवन निकालने बोला है ना। सो ब्रेक इवन इज व्हाट? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये क्या लिखा मैंने? अच्छा 2,50,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितना है? 14 लैक्स, पीवी रेशियो 28%, ब्रेक इवन कितना निकल गया? कितना? 50। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में क्या है? डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑन प्रेजेंट सेल्स वॉल्यूम ऑफ 80 लैक्स। 80 लैक्स अगर आप सेल करते हो तो उसमें प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? सो बी। सेल्स कितना है? 80 लैक्स ना। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कितना है कंट्रीब्यूशन? 28% है ना। कितना आ रहा है? 22,40,000। फिर उसे क्या माइनस करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 15, 14। सो प्रॉफिट इज हाउ मच? 8,40,000, राइट? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। If there is a reduction in selling price by 10%, company desires to earn the same profit as in
2024 व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम डिजायर्ड, मतलब सेम प्रॉफिट बोला है, सेम प्रॉफिट अभी हम लोगों ने निकाला है, प्रॉफिट कितना निकला था 8,40,000। तो डिजायर्ड सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है ना। लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक रिडक्शन इन प्राइस है, सेलिंग प्राइस में रिडक्शन है। आपका करेंट सेल्स कितना है 60 लैक्स, उसमें अगर रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस होता है तो कितना बन जाएगा सेल्स, हाँ 54 लैक्स। कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा, ना क्या क्या मुझे पता है, डायरेक्ट 54 लैक्स के ऊपर 28% अप्लाई किया है ना। कहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि पीवी रेशियो सेम रहेगा, कहीं पे बोला है सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है तो तुम्हारा सब कुछ चेंज हो जाएगा ना, पीवी रेशियो थोड़ी ना सेम रहेगा। मुझे पता है कहाँ पे गलती करोगे। इसको देखो, अभी हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसमें सेल्स। सो सेल्स में सेल्स कितना होगा अभी 60 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 90%, है ना, या फिर आप 10% माइनस जो भी बोल लो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, कंट्रीब्यूशन देखो वापस से बोल लाइन पर हो, क्या बोला है, सेलिंग प्राइस वॉल्यूम नहीं। अगर वॉल्यूम में चेंज होता देन वी वुड हैव मल्टीप्लाइड 28% ऑन 54 lakhs, व्हाई, बिकॉज द वेरिएबल कॉस्ट वुड हैव आल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है। अगर सेल्स वॉल्यूम में चेंज होता तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनली रिड्यूस होता, तो हम लोग डायरेक्टली 28% अप्लाई कर सकते थे, जो कि हम लोग प्रीवियसली कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो निकाला वो अप्लाई कर सकते थे। बट इन दिस केस देयर इज नो चेंज इन द सेल्स वॉल्यूम, ओनली सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लेता हूं मैं मेरा 100 रुपया का सेल्स था, उसका 80 रुपया का वेरिएबल कॉस्ट था, कंट्रीब्यूशन 20 रुपीज आ रहा था, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इसको 90 कर दे रहा हूं, इसमें कुछ चेंजेस है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ये 80 का 80 है। तो कंट्रीब्यूशन में मेरा कितना इम्पैक्ट आ रहा है, जो यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है ना, यहाँ पे जो इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे भी उतना का ही इम्पैक्ट आ रहा है। अगर वॉल्यूम में चेंज होता, यहाँ पे मैं अगर बोलता कि 10% वॉल्यूम में चेंज है, वॉल्यूम में चेंज होने से 80 का भी 10% चेंज होता जो कि 72 हो जाता, तो उस केस में 18 बनता, उस केस में परसेंटेज एज इट इज, इसमें भी 20% उसमें भी 20% रहता। बट यहाँ पे क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है देन देर इज अ चेंज इन कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो। सो कंट्रीब्यूशन में कितना इंपैक्ट आएगा, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना है, कितना रिड्यूस हो रहा है 6 लैक्स। सो आपका रिवाइज कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 10,80,000, है ना। जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे जैसे 10 का कम हुआ था तो कंट्रीब्यूशन में 10 माइनस हो गया था, सिमिलरली यहाँ पे 6 लैक्स माइनस हुआ तो कंट्रीब्यूशन में भी 6 लैक्स 10% माइनस हो गया। वॉल्यूम में चेंज होगा तो 28%, आपका जो फर्स्ट कैलकुलेशन था वही रहता, 54 का ऊपर 28% पीवी रेशियो, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं है, प्राइस में चेंज है ओनली, दैट्स व्हाई उसका इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन में भी इक्वली आएगा। हाँ हाँ, या फिर डायरेक्टली 28% वैसे भी निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, सेम ही निकलता। 16 लाख 80,000 इज एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन,
जो मतलब क्या बोला है कि सेल्स प्राइस में डिक्रीज हुआ है। 60 लाख कहाँ से आया, यहाँ से आया। यहाँ पर का कंट्रीब्यूशन कितना था, सेम ही चीज़ हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग द टेबल मैं ऐसे दिखा रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका भी 90% मतलब 10% रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर वॉल्यूम रहता तो हम लोग अलग तरीके से करते हैं, इतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं था। सो अभी रिवाइज पे पीवी रेशियो क्या होगा, रिवाइज पीवी रेशियो 10,80,000 डिवाइडेड बाय 54 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ रहा है? कैलकुलेटर मारो, कैलकुलेटर में जितना हाथ फास्ट होगा ना उतना अच्छा है। कितना? 20%। अभी क्या निकालना है हमें? डिजायर्ड सेल्स निकालना है। डिजायर्ड सेल्स, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, लॉस होता तो माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 14 lakhs। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 12 lakh। ऑन द सेम प्रॉफिट बोला है ना, तो सेम प्रॉफिट हम लोग कितना अर्न किया था पहले? 2,80,000 प्रॉफिट अर्न किया था। सो इसमें 2,80,000 ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना अभी जस्ट हमने निकाला है 20%। कितना आ रहा है आंसर? हम्म 84 lakhs। ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई करने से 84 लाख सेल्स हो गया। वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगा जो पहले था। कितना था पहले? 4320 था। 4320, कंट्रीब्यूशन कितना बना? 40,80,000। फिक्स कॉस्ट 14 लाख, नहीं ये तो कुछ, हाँ तो कुछ गलत है। वेरिएबल कॉस्ट यही था ना, 4320 था, कितना लिखा मैंने? अच्छा सेल्स तो ये होगा ना, क्या लिखा है? अच्छा सॉरी, ये भी चेंज हो जाएगा ना, इसका रेशियो चेंज हो जाएगा। डिजायर्ड सेल्स तो चेंज हो तो ये भी चेंज हो जाएगा, इसका 20% बनेगा। कंट्रीब्यूशन इसका 20% बनेगा, जो कि है 1680। डाउट है? बोलो बोलो, वेरिएबल कॉस्ट उतना ऊपर वाला क्यों वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिया, वो डाउट है? क्या डाउट है बताओ? ये इसमें डाउट है? बोलो, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर वाला नहीं लिया वो उसमें डाउट है?
क्यों क्यों मेरा तो लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो गया ना, 54 lakhs यहाँ कहाँ 84 lakhs। लेवल ऑफ एक्टिविटी ये इसका पर्पस इतना ही था पीवी रेशियो निकालने तक, बट मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटी तो कुछ अलग है ना। ये जो वेरिएबल कॉस्ट था, ऊपर वाला जो वेरिएबल कॉस्ट है, एक किसके लिए एप्लीकेबल था, 60 lakhs यूनिट्स के लिए, बट अभी मेरा कितना यूनिट्स आ रहा है, 84 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट भी तो उस हिसाब से वेरी करेगा ना। ठीक है, बोलो कुछ डाउट है तो बोलो, स्टिल आई एम ऑल यस। जब तक डाउट क्लियर ना हो पूछते रहो। बोलो, डाउट है? हम्म? ये यहाँ पे 60 lakhs या 54 lakhs या वॉट एवर 16 lakhs यूज़ करने का पर्पज़ इतना ही है क्योंकि हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट नहीं है। अगर पर यूनिट कॉस्ट रहता हम लोग पर यूनिट से निकालते। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि 60 lakhs लेके ही ये आंसर्स निकलेगा, अगर पर यूनिट रहता हम लोग पर यूनिट से निकालते। ये जस्ट एक रेफरेंस है कि हम लोग पीवी रेशियो निकाल सके। ठीक है, इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, X Limited has earned contribution of 2 lakhs and net profit of 1,50,000 on sale of 80 lakhs. What is the margin of safety? सर वो पीडीएफ डाल दो ना ये व्हाट्सएप पे, हाँ हाँ, दिख नहीं रहा है। काइंडली आप पीडीएफ डाल दो ना व्हाट्सएप पे, इधर ब्लरी हो रहा है, वो ओके वीडियो दिख वेट। नहीं रहा है। शशिदा पीडीएफ टू व्हाट्सएप दे दिए अपना ये एतिया पठवाडो मेलो ठवाडो ग्रुप हाँ। X Limited has earned a contribution of 2 lakhs, net profit of 1,50,000 on sales of 8 lakhs। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स या फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कौन सा इजी होगा आपके लिए? दोनों से ही निकल जाएगा, बट कौन सा इजी होगा इस केस में? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकाल लो, कितना होगा पीवी रेशियो? आंसर मैं बता देता हूँ, 6 lakhs। नहीं आए तो बोलो, मैं सॉल्व करवाऊंगा। मिल गया ग्रुप में?
आया आंसर? पीवी रेशियो 25% आएगा। सेल्स कितना है? 8 लैक्स, कंट्रीब्यूशन 2 लैक्स। आ गया? सबका आया? आई लगमा? हाँ वो टेबल बना लो ना। हम्म हम्म सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट आज ओके। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन इज 2 lakhs, 2 lakhs डिवाइड बाय, आ गया? हाँ जाओ जाओ, कितना टाइम हुआ? 10 मिनट में ख़त्म ही होने वाला है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत करो थोड़ा। अहिले 6 लाख तो आ गया सर। आ गया ना? गुड। If margin of safety is 2,40,000, which is 40% of the sales, and PV ratio is 30% of AB Limited, calculate break-even sales, amount of profit on sales, on sale of 9 lakhs. बताओ। हम क्या करेंगे इसमें? वही टेबल बनाएंगे, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2,40,000 विच इज 40% ऑफ सेल्स, तो सेल्स कितना होगा? 6 lakhs। कैसे निकालेंगे इसको? सॉल्व करने के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल मतलब वही वाला, कौन सा वाला? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है? अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली? क्या इंफॉर्मेशन है? कुछ भी नहीं है, ना सेल्स है, ना वेरिएबल कॉस्ट है, ना फिक्स कॉस्ट है, ना कंट्रीब्यूशन है, ना प्रॉफिट है। बट हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सेल्स। एक हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है वो टेबल कंप्लीट करने के लिए। वो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब फ्लो में जाना है, ठीक है? हड़बड़ी नहीं करना है, क्वेश्चन दे कंफ्यूज नहीं होना है। हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। क्या स्टार्टिंग पॉइंट है? सेल्स। सेल्स कितना होगा? 6 lakhs। कैसे आया? ग्रोस अप करके, है ना? मतलब कि बोला गया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 40% ऑफ सेल्स। सो कितना दिया गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 2,40,000। मतलब अगर x मान लूँ मैं सेल को, तो 0.40x। सो x कितना होगा? 240 डिवाइड बाय 0.40
ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट रेशियो। वो यूज करके हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो कितना है 30%, 1,80,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना निकल जाएगा, कितना है 4,20,000। अभी नीचे वाला पार्ट हमारे पास नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट है नहीं, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। कितना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 240, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट निकल जाएगा। पीवी रेशियो कितना है, कितना था 30%, सो प्रॉफिट कितना होगा 72,000, है ना। सो और एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, तो फिक्स कॉस्ट तो इजीली मिल जाएगा। कितना है फिक्स कॉस्ट अभी, 1,08,000। अभी तो कुछ करने का ही नहीं, सारा कुछ आ ही गया। क्या निकालने बोला ये बोलो, हाँ ब्रेक इवन सेल्स निकल जाएगा, क्या है उसमें, ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है 1,08,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना निकला 30%, दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, 3,60,000। ठीक, हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया, सेल से। सेल से क्या क्या निकाला, कंट्रीब्यूशन बाय यूजिंग व्हाट, यूजिंग पीवी रेशियो। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ, हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ था कि 40% ऑफ सेल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसको लेके हम लोग पहले सेल्स निकाला। ठीक है, सेल्स को यूज करके हमने क्या निकाला, कंट्रीब्यूशन। फिर मैं सोच में पड़ गया आगे क्या करूँ, फिर वापस से देखा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो इसको यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल के फिक्स कॉस्ट। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, फिक्स कॉस्ट निकालना, क्योंकि पीवी रेशियो ऑलरेडी था, मुझे फिक्स कॉस्ट निकालना था। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट में क्या है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या है, जोर से, ये तो इजीली निकाल लोगे, ये जरूरत है करवाने का। 9 लाख का सेल्स दिया हुआ है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट निकालने मत जाना, हाँ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन निकालो, इतना मेहनत का जरूरत ही नहीं। कंट्रीब्यूशन 30% है, कितना है 270। इससे आप क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, कितना है फिक्स कॉस्ट 1,08,000। सो आपका प्रॉफिट निकल गया कितना 1,62,000। डन एंड डस्टेड। सो छोटा सा इंफॉर्मेशन लेके हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अभी आगे और भी मजा आएगा थोड़ा एडवांस लेवल पे जाने दो। हम्म, इस बार
क्लासेस को थोड़ा स्ट्रेच करके मैं करूँगा धीरे धीरे। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त ना, दिसंबर में एग्ज़ाम है तो नवंबर तक करवाता हूँ, ठीक है। ये 3 हो गया अपना, बाकी सारे नेक्स्ट क्लास करते हैं, टिक करके रख देना कहाँ से स्टार्ट करना है। इलस्ट्रेशन 4 डी से स्टार्ट करेंगे। 3 नहीं हुआ, अच्छा ठीक, 1 2 हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। क्लास रिकॉर्ड स्टार्ट किया था कि नहीं? हाँ किया था, थैंक गॉड। बाय बाय।